بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو AS ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ایک شارٹ سٹوری ہے۔ اس کا نام ہے دل کی چولی اور رائٹر کا نام ہے شاہین ملک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ رشتے نبھانے کے لیے نہیں بنتے اور کچھ کو جوڑا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ اذیت میں مبتلا رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عبیر اور پروفیسر خالد کا رشتہ کیا معنی رکھتا تھا؟ میں ان دونوں کو بہت سالوں سے جانتی ہوں۔ عبیر میرے ساتھ جامعہ کراچی میں داخل ہوئی۔ وہ سائنس کی طالبہ تھی۔ میں سماجی بہبود کے شعبے کی طرف نکل گئی، مگر ہمارا تعلق ان علیحدہ شعبوں کے باوجود کمزور نہیں پڑا۔ وہ پڑوسن بھی تھی۔ روزمرہ کے کئی چھوٹے موٹے کام ہم مل جل کر کیا کرتی تھیں۔ بازار آنا جانا ہو، موسمی پکوان بنانے ہو یا عید تہواروں پر شاپنگ میں ہاتھ بٹانا ہو، وہ ساتھ دیتی تھی۔ جن دنوں پروفیسر خالد عبیر میں دلچسپی لینے لگے تھے تب بھی وہ اتنی ہی ملنسار اور ہمدرد تھی۔ کئی مرتبہ بازار جا کے بجٹ آؤٹ ہو جاتا تو ہم ایک دوسرے کے لیے قرض حسنہ جاری کر دیتے۔ کبھی ماتھے پر بل نہیں پڑتا تھا۔ آئس کریم یا چاٹ کے پیسے بچے نہ بچیں فکر نہیں ہوتی تھی، بس شاپنگ مکمل کرنا ہمارا ہدف ہوتا تھا۔ اسی طرح گھر کے دکھ سکھ میں بھی کسی کی بات بری لگ جائے یا کسی کو اپنے دل کی بات کہنی ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ملتی تھیں۔ جس روز وہ مجھے پروفیسر خالد سے متعارف کرانے ڈپارٹمنٹ لے کر گئی تھی وہ بہت خوش تھی، بہت پرجوش۔ ہم نے الیگ سلیگ کے بعد ان کے دفتر میں چائے پی۔ کسی پروفیسر کے کمرے میں چائے پینا چاند پر قدم رکھنے جیسی خوشی اور ولولہ انگیز تجربے سے کم نہیں تھا۔ میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر تو اتنے سخت گیر قسم کے تھے کہ ان کے کمرے میں قدم رکھنا اور اسائنمنٹ دے کر واپس آنا ہی K2 سر کرنے کے برابر محسوس ہوتا۔ اور یہاں ایک پروفیسر ہم سے ہماری دلچسپی کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ واپسی پر اس نے پوچھا، سارا کیسے لگے تمہیں؟ بہت اچھے، مگر عمر۔ میں رک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے ان کی عمر زیادہ لگی ہے۔ اسٹیبلش تو ہے نا؟ دیکھو سارا، امجد، محمود اور کمال احمد یہ تینوں کزنز رشتہ لیے حاضر ہیں اور ان میں سب یا تو جدہ پلٹ ہیں یا مسقط جانے کے خواہش مند۔ دبئی ان کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی پروفیشنل نہیں، ٹیکنیشین، پلمبر اور کارپینٹر۔ کیا یہی رہ گئے اپنے نصیبوں میں؟ وہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پہلی بار میں نے اسے ٹوک دیا، بلکہ جھڑک دیا کہ خاندان کی چند ایک لڑکیاں MA MSc کر لیں تو انہیں یہ حق تفویض نہیں ہو جاتا کہ وہ محنت کشوں کی تضحیق کریں۔ آپ دل کا سودا نہیں چاہتیں تو پیچھے ہٹ جائیں، مگر غربت دھونے کے لیے محنت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ چپ ہو گئی مگر بعد میں صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، دراصل اب دماغ سمجھو خراب ہو گیا ہے۔ نظر میں وہ لوگ نہیں سما رہے جو ساتھ ایک آنگن میں کھیلے، ساتھ پلے بڑھے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر سکے۔ مجھے حسرت سے دیکھتے رہے، مگر خلیج کی کمائیاں لا کر ماؤں کی ہتھیلیوں پر رکھنے والے اسی آس میں رہے کہ میں ان کے وجودوں پر طاری پردیس کی تھکن اتاروں، کوئی میٹھی بات کروں، کوئی پیغام قبول کروں، اور یہ سب میں نے نہیں کیا۔ مجھ سے مایوس ہو کر امجد نے میٹرک پاس دوشیزہ سے منگنی کر لی۔ باقیوں کی مائیں گھر کے چکر لگا رہی ہیں، مگر فضول ہی ہے۔ اب تم جاؤ اور امی سے خالد صاحب کی بات کرو، بتا دینا کہ تم مل چکی ہو، اچھے آدمی ہیں۔ وہ ایک سانس میں کہتی جا رہی تھی۔ مجھے پیار آ رہا تھا اس پر، مگر حیرت بھی ہو رہی تھی اس کی سوچ پر کہ وہ خالد صاحب کی پہلی شادی، ایک بیٹی اور بیوی کی علیحدگی کے مسائل سب کچھ ہی تو جانتی تھی۔ خالد صاحب نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اس سے۔ یونیورسٹی میں ہر کسی کو پتہ تھا ان کی بیٹی کلاس 5 میں پڑھتی ہے، جو اپنی نانی کے گھر رہتی ہے، چھٹی کے روز گھر آتی ہے۔ سوچ لو، پیار، محبت، توجہ اور وقت ہی نہیں، سرمایہ بھی شیئر کرنا پڑے گا۔ کر سکو گی؟ میں نے اپنی دانست میں اسے سمجھانا چاہا۔ غیر شادی شدہ مرد کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے کیا کچھ بھی شیئر نہیں کرنا پڑتا؟ کم از کم ہم جیسے مڈل کلاس اور مشترکہ خاندانی نظام میں امجد کی 4 بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہیں، بوڑھی ماں اور باپ، بیماریوں کے علاج کے خرچے ہی خرچے، اور محمود یا کمال کی طرف دیکھو تو 200 گز کے مکان پر 6 بھائیوں کی رہائش، ساتھ ساتھ بوڑھے والدین الگ، 6 بھائیوں کی اولادیں الگ، سانس لینے کو گھر میں جگہ نہیں۔
उनसे तो प्रोफेसर खालिद ही भले, जो मुझे चाहते भी हैं और ज़िम्मेदारियों की तकसीम भी जानते हैं। मुझे तो फ़ख्र होता है, उन्होंने मुझे पहले दिन से समझ लिया, मेरी कदम कदम पर रहनुमाई की, वरना मैं और ये सेमेस्टर ए ग्रेड में पास कर सकती थी। मैं जान चुकी थी कि वो फ़ैसला कर चुकी है, तो अब वालिदैन को शरीक करना ज़रूरी है। 1 साल में ही ये शादी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। मैं भी दूसरे महल्ले ब्याह कर आ गई। मेरी मुमानी के मेके वालों से इस ख़ानदान के पुराने ताल्लुकात थे। हसन अच्छे इंसान लगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उन दिनों ये तकनीक नई नई मुतारिफ़ हुई थी। अपने शोबे के माहिरीन के साथ जुड़े, एक कुंबे की मानिंद मेहनत से काम करते। इत्तेफाक से मुझे भरा पूरा ससुराल मिला, लेकिन तालीम याफ्ता लोग थे और समझदारी से रिश्ते निभाते थे। अब अबीर से मिलना जुलना तो कम होता, मगर टेक्स्ट मैसेजेस पर राब्ता रहता और फ़ोन पर भी बातचीत हो जाती। वो घर आती तो मैं भी किसी बहाने से अम्मी के घर का चक्कर लगा आती। शादी के बाद उसने कहा था, खालिद वाकई बावकार शख्सियत रखते हैं, उनके नाम से जुड़ना ही बड़े एजाज़ की बात है। हमारी बेटी ज़ारा अब जब चाहती है हमें फ़ोन करती है, घर आती है, हम आउटिंग पर जाते हैं। कभी वो एक हफ़्ता हमारे साथ क़याम करती है। मैं उसे हॉस्टल से घर लाना चाहती हूँ, मगर खालिद अभी कुछ वक्त चाहते हैं। मैं खामोशी से सुनती रही। बेहतर यही था कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ढब से गुजारे। मैं उसे कोई मशवरा क्यों देती? उसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। अपनी औलाद के बारे में क्या सोचा है? मैंने धीरे से पूछा। अभी तक तो नहीं, मगर तन्हाई महसूस होने लगी है। मैंने देखा उसकी आंखों में दीपक बुझ से गए थे। तो फिर सोच लो, क्योंकि ज़्यादा वक्त गुजर गया तो कोई पेचीदगी भी बढ़ सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, मगर फिर भी मैं रुक गई उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए। उसने पहलू बदला और बोली, खालिद नई जिम्मेदारी से घबराते हैं। कहा था एक बार मैंने, मगर वो सुनी अनसुनी कर गए। मेरा कोई जवाब या रद्द-ए-अमल जाने बगैर वो मेरे बच्चों और हम और इनाया से खेलने लगी। मैंने मौका मुनासिब जाना और चाय के लवाजमात लगाने में बुआ की मदद करने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर वो औरत ही है ना जो 4 दीवारी चाहती है, घर को एक साइबान बना के नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ और शरारतें देखना और ज़िंदगी को उसके मुकम्मल रंगों समेत महसूस करना चाहती है। लेकिन क्या करे, प्रोफेसर खालिद जब नहीं चाहते तो उसे उनकी राय बदलने तक इंतज़ार करना ही होगा। औरत के लिए मर्द से नाम जुड़वाना कब तक काफ़ी होता है? सब किताबी बातें होती हैं ना। अल्लाह रहम करे इस जोड़े पर। वो कुछ ही देर बाद चली गई। रात के खाने पर हसन, मैं और बच्चे अबीर की बातें करने लगे। बच्चों को अबीर के लाए हुए खिलौने बहुत पसंद आए थे। इत्तेफाक से हसन ने भी उनकी औलादी के बारे में पूछा। खुद ही उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब के यहाँ अपनी बेटी है ना, तो उन्हें अब नए बच्चे की ज़रूरत क्या है? मेरा तो नहीं ख्याल कि वो अबीर को ये खुशी कभी दे सकेंगे। अच्छा, तो क्या जवान लड़की से उम्र के इतने यानी 25 बरस के फ़र्क से शादी रचाना खुदगर्जी हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी। मैं उन्हें इतना करीब से तो जानता नहीं। अरे छोड़ो, तुम भी क्या किस्सा लेकर बैठ गईं? तुम्हारी सहेली का दिमाग क्यों ख़राब हो गया था? उन्हें साहिबे सरवत देखकर अपनी जवान उमंगों को दांव पर क्यों लगा बैठी? वह हाथ धोने वाशरूम चले गए। अब मैं उन्हें क्या बताती कि इस गलती का एहसास तो उसके वालिदैन ने भी दिलाया था। चंद बरस गुजर गए। हसन को मलेशिया में जॉब मिल गई। हमारा कुंबा पाकिस्तान अब 2 बरस बाद आता। अबीर से एक विज़िट में तो मुलाकात ही ना हो पाई। यूनिवर्सिटी से पता चला कि वो अपनी फैमिली के साथ शुमाली इलाका जात गई हुई है। मेरा बेटा अरहम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स देखने लगा था। वो झट से बोला, मगर मामा, वहाँ तो ड्रोन अटैक होते हैं और ज़रबे अज़ब भी। उस लड़की को एडवेंचर ही पसंद है। आओ देखती है ना ताओ, ख़तरात से खेलने चल देती है। डिपार्टमेंट वालों ने मेरा नंबर लिया कि जो ही वो आएँ उन्हें दे देंगे। हफ्ता भर गुजर गया। ज़िंदगी के ढब बदलते हैं तो मसरूफ़ियात और दिलचस्पियाँ भी आप ही आप तब्दील हो जाती हैं। अब मैं उसके साथ बराह रास्त राब्ते में नहीं रही। मैं बाज़ारों में मैचिंग चूड़ियाँ, दुपट्टे, जूतों और नए फ़ैशन के मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गई। 2 नंदों की इकट्ठी शादियाँ हो रही थीं। तकरीबात के साथ साथ रस्म और रीतों के लिए हज़ारों काम थे, जिनमें मैं अपने ससुराली अजीज़ों का हाथ बटा रही थी।
2 नंदों के बाद एक देवर साहब शादी की कतार में लगे थे। मुझे ये भीड़, ये भरा पूरा कुंबा और जिम्मेदारियों भरी ज़िंदगी हसन और बच्चों के सहारे बहुत अच्छी लगती थी। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मेरा रिश्ता तय करते वक्त भी मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे। बज़ाहिर शहज़ादियों की तरह रहते बसते मैं जिस घराने में ब्याही गई, वहाँ शुरू दिन ही से जिम्मेदारियों की गठरी मेरे सर पर लाद दी गई थी। मेरे सामने मेरी रोल मॉडल मेरी खालाएँ और अम्मी थीं, जो 10-10 बच्चों के घरानों में ब्याही गईं और जिम्मेदारियां निभाते हुए जिनके माथों पर कभी बल न पड़े। अबीर की अम्मी भी अपने ससुराल में तीसरी बहू थी और उनकी 2 बहुएं और घर में आईं। इस लिहाज से उन्होंने भी इसी तरह मुश्तरका ख़ानदान में ही ज़िंदगी शुरू की थी, लेकिन वो अपनी औलाद में इस तरह के इंतज़ामी ढांचे से मोहब्बत ना पैदा कर सकीं। शायद उनके दिल में कहीं ससुराल से नफ़रत की छोटी सी चिंगारी दबी हुई थी। शायद किसी अजीज़ का रवैया बहुत खुला है या कोई तवक्को पूरी ना हो, जिसकी वजह से वो ख़ानदान के किसी लड़के में दिलचस्पी ना ले सकी। बल्कि गरूर का ये आलम होता कि अल्तफ़ात का जवाब हमेशा सर्दमोहरी और रूखेपन से देती रही, जिसके बाद किसी का हौसला ही ना पड़ा कि उसे आंख भर के देखता। मास्टर्स करने यूनिवर्सिटी गई तो ख़्याल को और भी आज़ादी और तक़वियत मिल गई। प्रोफेसर खालिद की बीवी किसी बात पर नाराज़ होकर चली गई थी और खुला लेकर उनकी ज़िंदगी से दूर हो गई, तो अबीर का भोलापन, जहानत और हुस्न देखकर उनमें एक बार फिर घर बसाने की आरज़ू जागी। मैंने उसके घर शादी का कार्ड बेध्यानी में दिया, मगर उसने बड़े ध्यान से उसे पढ़ा और अगले रोज़ हम लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मलेशिया कैसा है? क्या तुमने लंकावी बीच देखा? क्या बनाना बोट को रस्सी की मदद से सोलर बोट से बांधकर कश्ती रानी की? और कभी पेनांग की स्टेट मस्जिद देखी? मैं जब वहाँ गई थी तब बेव्यू बीच रिज़ॉर्ट नया बना था। बहुत खूबसूरत जगह है, मगर वो ये किस्से आज से 20 बरस पहले के सुना रही थी। मैं उसे आज के मलेशिया के बारे में बताती रही थी। क्या कर रही हो आजकल? मैंने बात पलटी। उसने बताया कि वीसी की सेक्रेटरी है और फिज़िक्स के डिपार्टमेंट की एजाज़ी लेक्चरार भी है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। खाक कामयाबी है। थक जाती हूँ सारा दिन। कोड़ मगज़ तलबा के साथ दिमाग की दही बन जाती है। मैं हंसती रही। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बच्चे हैं, शौहर है, मलेशिया है और फ़िक्रों से आज़ाद ज़िंदगी। वो इसी तरह के तकाबली जायज़े लिया करती थी। तुम एक नस्ल को इल्म नाफ़ी अता कर रही हो ताकि वो मुआशरे के मुफीद शहरी और इंसान दोस्त बन जाए। मैं चाहती थी कि वो सेहतमंदाना तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करे, कम अज़ कम बूढ़ापे की दहलीज़ पर पहुँच कर ही सही। दुनिया के दिल फ़रेब रंगों को ऐनक लगा के देखने की बजाय सिर्फ़ बिनाई का चश्मा लगाए, ताकि दूर और नज़दीक से हक़ाइक़ को बारीक बीनी से देखें। और तुम माँ बन गई हो, एक रहमत और एक नेमत को उंगली पकड़कर उन्हें कठिन रास्तों से मंजिलों का पता दे रही हो। तुम्हारे कदमों तले जन्नत आ गई है और मेरे पास दिमाग खपाने को ऐसी ही चंद मसरूफियात रह गई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बात को दरमियान में छोड़ दूँ तो कहीं वो इसी ख्याल को सही ना तस्वर कर ले कि उसकी ज़िंदगी बेमकसद है। और ये भी नहीं कह पा रही थी कि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों चुनी है, तुमने बगावत की है जिसके अजाब झेलने पड़ रहे हैं। मुझे तो अब रात को नींद की गोली खाए बिना नींद भी नहीं आती। ऐसा ना करो, डिप्रेशन का इलाज करवाओ। क्यों अपनी जान को अजाब में डाला हुआ है? अजाब भी ऐसा वैसा? बेटी मुझे सौतीली माँ कहकर नफ़रत करने लगी है। प्रोफेसर साहब ने मुझे यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ कर रखा है ताकि मैं घर पर आऊँ तो बुरी तरह से थकी हुई हूँ, ना लड़ सकूँ ना कोई मुतालबा कर सकूँ। कहते कहते वो रो पड़ी थी। ज़रा सोचो, ये नाशुक्रापन नहीं? तुम ऐसी तो नहीं थी अबीर। इसी असना में मोबाइल बजने लगा। उसने आंखें पोंछ कर देखा। शायद प्रोफेसर खालिद का फ़ोन था। वो बोली, आज निकली हूँ तो भी चैन नसीब नहीं मुझे। पूछा जा रहा है कहाँ हूँ मैं, कहाँ जाना है मैंने। मैं खामोश रही कि ये मियाँ बीवी के आपस का मामला था। वो जिस कैफियत से गुजर रही थी, इसमें वो कहाँ मानती कि चाहने वालों ही की तो खबरगिरी की जाती है, गैरों या वास्ता न रखने वालों को तो कोई मुड़कर नहीं देखता। बता दो कि मैं आई हुई हूँ, बल्कि यहाँ बुला लो। अरसा ही हो गया उनसे मुलाकात किए हुए।
मैंने बड़े मान से कहा था, मगर उसे अच्छा न लगा। बोली, तुम नहीं जानती, वो अब मुझ पर शक करने लगे हैं। कहते हैं किन किन लोगों से छुप छुप कर मिलने जाती हो और कब छोड़ के जा रही हो मुझे। जब हाथ उठाते हैं तो कहते हैं जाओ किसी एनजीओ का दरवाज़ा खटखटाओ कि मैं पढ़ा लिखा होकर जाहिलों की मानिंद अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ और तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे लगा वो एक ऐसा मकान है जिसे तामीर हुए कई सौ बरस गुजर चुके हों, और मकीनों ने उसकी जवाब देती हुई तामीर पर वसाइल सर्फ करने से हाथ रोक लिया था। दीवारों से रंग और प्लस्तर उखड़कर दुहाई देने लगा था। ईंटों का यह सतर खुलता जा रहा था। फिर वो उठी और रोती रोती चली गई। मुझसे वो रात काटे नहीं कट रही थी। उसकी माँ जिंदा नहीं थी। बूढ़े वालिद तो थे मगर शबकोरी के मर्ज में मुब्तला थे। शुगर और ब्लड प्रेशर इसके अलावा थे। उन्हें कैसे बताया जाता, नहीं बताया जा सकता था कि आपकी लाडली बेटी बातों के गुब्बारे उड़ाकर खाली हाथ हो चुकी है। हालांकि खाली हाथ तो वो नहीं थी। जिन्हें वो चाहती थी वो उसके बहुत करीब थे, मगर शायद बज़ाहिर, वरना उसकी ज़ाती ज़िंदगी किताबों, तलबा, जामिया के इंतज़ामी सरगर्मियाँ और निसाबी मसरूफियात तक महदूद थी, इसलिए तन्हाई का शिकार थी। काश इनके यहाँ एक ही औलाद हो जाती। चंद रोज़ बाद मुझे वापस मलेशिया लौटना था। मैंने उसे शहर के एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पहुंचकर ऑफ़र दी और कोशिश की कि वो प्रोफेसर साहब को भी साथ ले आए। मैं सिर्फ उन्हें देखना चाहती थी कि जो शख्स कभी तलबा में आइडियल हैसियत का मालिक था, अब क्या हो गया है। वरना मैं क्या इस पोजीशन में थी कि उन्हें कुछ समझा सकूं या मशवरा दे सकूं। उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा। वो मोहतरम तो आजकल स्टडी टूर पर लाहौर गए हुए हैं। असल में ये टूर तो एक बहाना है। बेटी को अपनी माँ से मिलाने गए हैं। सुना है महारानी एक बार फिर जिंदा हो गई हैं। फिर जब वो लंच पर आई तो बोली, मुझसे तो यही कहा था कि उसने खुला के लिए मुकदमा कर रखा है और वो अब तक खामख्वाह केस को तवील दे रहे थे। मुझसे मिलने और शादी का फ़ैसला करने के बाद उनके लिए फ़ैसला करना आसान हो गया है। लेकिन पता नहीं बेटी के जवान होते ही वो एक बार फिर कैसे ज़िंदगी में दाखिल हो गई है। पहले तो रात रात भर मैसेजेस आते रहते। वो रोया करती, बेटी से मिलने का प्रोग्राम तरतीब देती। पता नहीं कब कराची आई, कब ये लोग दोबारा इकट्ठे हुए। मैं जो खुद को पढ़ी लिखी और बाशऊर समझती हूँ, इस कदर लाइलम कैसी रही। उनके जाने के बाद उनके सेक्रेटरी ने बताया वो हवेली वाली बेगम के यहाँ ठहरेंगे। ये नंबर है। हमें कह कर गए हैं कि जब कभी अशद ज़रूरत हो तभी उन्हें फ़ोन किया जाए। इम्तहानी कापियाँ भी जांच कर नहीं गए। उनकी बेगम की तबीयत नासाज है। पता नहीं मुझे अंधेरे में रखने की ज़रूरत क्या थी। मैं तो वाकिफ़ थी कि वो अपने जहेज़ में मिली हुई हवेली में मुकीम है। बड़ी आन बान शान वाली है। मेरे और खालिद के ताल्लुक़ को बड़ी आसानी से कबूल करने वाली हस्ती कोई आम मोहब्बत तो नहीं हो सकती। मेरे दिल में उसके लिए एहतराम था, मगर अब ऐसा लगता है कि इस तक़सीम शुदा ताल्लुक़ में से सुहाग की घड़ियाँ समझौते की शक्ल में देखने को मिलेंगी। तुमने क्या सोचा था? उनके सामने अपनी फ़तह का परचम उठा के ले जाओगी कि देखो जवान औलाद की माँ। मर्द वो हस्ती है जो मंजिल पर कभी नहीं पहुँचता। एक ज़रूरत, दूसरी हविस, तीसरी इश्क और चौथी मजबूरी। ये अपनी थकन इसी तरह उतारता रहता है, कभी थकता नहीं, थका देता है। अब तुम तंज कर रही हो? नहीं मेरी बहन, मैं तंज नहीं कर रही। मुझे हमदर्दी है तुमसे, मगर क्या करूं? तुम्हें कैसे आमादा करूं कि तुम अपने मदार के गिर्द ही रहो। उन दोनों को वहीं छोड़ दो जहां वो हैं। अगर तुम खालिद साहब को सज़ा देने का सोच रही हो तो भी गलती पर हो। बेटी उसकी है, उसी की रहेगी। लाख मोहब्बतें अनायतें लुटाओ, एहसास वो क्यों करे? वो तो माँ के बहकावे में आ गई होगी। बाप के बहलावे में खिलौनों किसी कशिश और तासीर भी नहीं रही होगी अब तक। अगर इस ज़िंदगी को अज़ियतनाक बनाना है तो उनसे तवक्को रखो, वरना तुम खुद मुख्तार और अपने पैरों पर खड़ी हो। मत देखो पीछे मुड़कर। वो जहाँ तक साथ निभाएं चलो, जहाँ हाथ छुड़ाएं उसे तकसीम का एक सवाल समझ लो। अब तक तो तुम भी जान गई होगी कि मोहब्बत की महरूमी और तवक्को अधूरी रह जाने से
शख्सियत में कर्ब उमड़ आता है। सब फितरी है ना। कभी कभी हम जज्बात से मगलूब होकर इकट्ठे होकर रहने का जा फिज़ा तजर्बा करते हैं, लेकिन बाद में उकदा खुलता है कि दरअसल हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। बने होते तो हालात बिगड़ते ही नहीं। अब मुझे एहसास होता है कि मैंने जिस उम्र में प्रोफेसर साहब से इश्क किया, वो उम्र जज्बाती तौर पर नाबालिग थी। मुझे लोगों का कहना मानना चाहिए था। तुम अब भी अपने मदार से बाहर जा रही हो। मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की तुमने, मगर ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। लेकिन तुम लड़ो इस मोहब्बत और ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा अज़ली हक़ है अबीर। तुम खालिद साहब की ज़िंदगी की रफ़ीक हो। उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास दिलाओ, अपनी नाराज़ी का सबूत दो उन्हें, या अगर हिम्मत है तो दूसरी शादी के लिए पहली को ख़त्म कर दो। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। खालिद आज शाम को लाहौर से वापस आ रहे हैं। मुझे खाना भी पकाना है। सुनो, चाइनीज़ ले जाओ यहीं से। क्यों थकाती हो अपने आप को? घर जाकर फेस पॉलिश करा लो, बाल कटवा लो और नया जोड़ा पहनकर इस्तकबाल करो उनका। मैंने अपनी दानिस्त में वही मशवरा दिया जो मैं अपने रूठे हुए शोहर को मनाने के लिए खुद करती थी और कामयाब रहती थी। मैं आज अपने हाथ से उनके लिए पराठे बनाऊंगी। देखो, कदर करो अपनी भी और उस शख्स की भी जिसे रिज़्क की तरह खुदा से मांगा जाता है। वापसी पर ड्राइवर ने बाहू के कलाम की कैसेट ऑन कर दी। बाहू ने क्या खूब कहा था, दिल दर्जी की दुकान की मानिंद होता है। समझ में नहीं आता कौन सी लीर के साथ जोड़ी जाए। मोहब्बत की चोली सीते वक्त कई बार दिल सिलाई में आ जाता है तो सारा सिला हुआ उधेड़ कर उसे फिर से सीना पड़ता है। कभी कभी एक टांका 1 साल में जाके लगता है, तब कहीं जाकर दिल की चोली पर कोई फूल खुशबू बखेरता है। मोहब्बत नहीं मरनी चाहिए, जिस तरह ईमान कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं अबीर, दोबारा मिलना हो या ना मिलना हो, मगर कोशिश करना प्रोफेसर खालिद की मोहब्बत एहसास में ज़िंदा रहे। ये मेरा आखिरी टेक्स्ट मैसेज था जो मैंने उसे एयरपोर्ट से मलेशिया रवानगी से पहले किया था। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।